हेलो। So we are going to start algebra important topics and only for those जिनकी प्रिपरेशन है ऑलरेडी से दे जस्ट वांट रिवीजन, क्योंकि कल पेपर है। हम लोग बेसिक से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ना तो मैं कोई भी बेसिक डिस्कस कर सकता हूँ। जिनको आइडिया है टॉपिक्स का, जिनको टॉपिक्स का आइडिया है, जिनको टॉपिक्स का आइडिया है, वी विल स्टार्ट फॉर देम ओनली, ठीक है ना। उन्हीं के लिए स्टार्ट करेंगे जिनको टॉपिक का आइडिया है और वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाए चीज़ें, उनकी शायद कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इन एल्जेब्रा में जो सबसे पहली टॉपिक बनता है तुम्हारा, दैट इज कॉची एंड AMGM बेसिकली। ठीक है, कॉची एंड AMGM कॉन्सेप्ट। अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा। अगर किसी ने भी प्रिपरेशन करी है सिर्फ, तो मैं इस लेवल का कराऊंगा कि किसी ने प्रिपरेशन अगर पहले से करी है तो उनको सब आइडिया लग जाएगा। अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी हुई है तब उनको आइडिया नहीं लगेगा। अगर किसी ने प्रिपरेशन करी है ठीक से, उनको जस्ट रिवाइज करना है चीज़ें, तो वो रिवाइज कर सकते हैं फास्ट पेस पे। ठीक है, क्योंकि बेसिक पे नहीं जा सकते। समझो कल एग्जाम है, आज के दिन पे बच्चों को A नहीं पता, S नहीं पता, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स का बहुत लॉस हो जाता है टाइम में। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन पे तुम्हारे पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, जहां पर दे कैन आस्क यू दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। जैसे लेट फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे विल गिव यू सम दैट लेट A plus B plus C is equal to 9 and they will ask you that what is the maximum value of ABC. So you will say that maximum value will occur at equality. That means when A is equal to B is equal to C, then maximum value will occur. That means maximum value will be 3 into 3 into 3, that will be 27. But A, B, C need to be positive real numbers. They need to be positive real numbers. So when A plus B plus C is equal to 9 and they want to ask you what is the maximum value of ABC, that is 3 into 3 into 3 is equal to 27. और maximum minimum से related एक चीज और समझो कि we can apply this concept anywhere. मतलब अगर कहीं पे तुम्हारे पास तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि how to approach this particular question, we should apply AMGM concept, we should apply Cauchy concept, and you can see symmetry there. Symmetry, then maximum और minimum value can occur on symmetry also. कैट में जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विल अकर एट सिमेट्री। यहाँ सिमेट्री पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर हो जाती है। सिमेट्री का मतलब ये है कि व्हेन वी विल रिप्लेस A by B by C और C by A, that should not hamper the equation. That means when you will write instead of A plus B, you will write B plus A, that will not change the equation. That is known as symmetry of equation. ठीक है, तो सिमेट्री से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है कि when you have sum, you want to find product, but there is no power of प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे पावर को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे, लेट करो क्वेश्चन आ जाए 2A plus 3B plus 4C is equal to 9 and you want to maximize the value of A square, let B cube and C to the power 4, and this is true that A, B, C are positive real number. A, B, C are positive real number. So we have two methods here. We have two methods. First method is AM greater than equal to GM approach. Second approach is proportionality approach to solve this type of question. The first approach is AM and greater than equal to GM. Now understand how to apply AM greater than equal to GM in this type of question. You need A square. How you will get A square? When A will be multiplied by A, then only you will get power 2. In the same way, when B will be multiplied by B, you will get B cube. In the same way, C into C into C into C, you will get C to the power 4. That means you need to break 2A into two parts. That means you will write A plus A. In 3B, you will write B plus B plus B. In 4C, you will write C plus C plus C plus C.
That means now you have 4 plus 3 plus 2, 9 terms divided by 9, that is am. Arithmetic mean is greater than equal to geometrical mean, a square b cube c to the power 4 to the power 1 by 9. I hope you know what is the arithmetic mean, what is geometrical mean. And one thing, arithmetic mean and geometrical mean is only for positive real numbers. It is not for negative real number or non-negative integer. It is only for positive real number. We can apply arithmetic mean is greater than equal to geometrical mean when these numbers are positive real number. They will mention that these numbers are positive real numbers. So this is 2a plus 3b plus 4c divided by 9, that is greater than equal to a square b cube c to the power 4 to the power 1 by 9. That means 9 by 9 is greater than equal to a square b cube c to the power 4 to the power 1 by 9. So that is 1 is greater than a square b cube c to the power 4 to the power 1 9, and now you will take 9 times, that is a square b cube c to the power 4. That means what is the maximum value of this? Maximum value will be 1. Now what is the other approach to solve this type of questions? Other approach, you can take proportionality. That means हम लोग ने जैसे भी सीखा ना मैक्सिमम कहां पर वर्क करता है, दैट विल वर्क ऑन इक्वलिटी ओनली. सो अगर हम लोग 2a को देखें, 2a को, सो 2a को कितने पार्ट में ब्रेक करना है? यू नीड टू ब्रेक 2a इन 2 पार्ट्स, दैट मीन 2a डिवाइडेड बाई 2. You need to break 3b in 3 parts, that means 3b divided by 3. You need to break 4c into 4 parts, that means 4c divided by 4. That is equal to 2a plus 3b plus 4c divided by 2 plus 3 plus 4. Because this is proportionality concept, when a by b is equal to c by d, that will be equal to a plus c by b plus d. That is true here also. So 2a will be divided in 2 parts, 3b will be divided in 3 parts, 4c will be divided in 4 parts. That means a is equal to b is equal to c is equal to 9 divided by 9, which is equal to 1. So a is equal to b is equal to c is equal to 1 will give you maximum value. And what is the maximum value of a square b cube c to the power 4? That is 1 square 1 cube 1 to the power 4, that will be equal to 1. Or you can solve this question. अगर मैं एक और एग्जांपल दिखा दूं, लेट करो कि तुम्हारे पास दिया है 3a plus 5b plus 6c is equal to 20, and a, b, c are positive real number. A, b, c are positive real number, and you want to maximize a square b cube c to the power 4. You want to maximize this. So you will break 3a in how many parts? You will break 3a in 2 parts. You will break 5b in how many parts? You will break 5b in 3 parts. You will break 6c in how many parts? You will break 6c in 4 parts. That is equal to 3a plus 5b plus 6c divided by 2 plus 3 plus 4. प्लीज कीप पेशेंस बेटा, मैं भी करा दूंगा, वो भी कराऊंगा अभी, पहले ये वाला कवर कर लें. 5b by 3 is equal to 6c by 4. 3a plus 5b plus 6c, that is 20. 20 divided by 9. Now you can find value of a, you can find value of b, you can find value of c. Put here, you will get your maximum value. ठीक है. So this is one type of question जो तुम्हारे कैट में रिपीट होते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस. You might get this type of questions in cat. हाई चांसेस रहते हैं कि कैट में इस टाइप का क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो. Now second type of questions क्या आते हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट दे देगा. They will give you product. Let a b c is equal to 27, where a b c are positive real number, and they will ask that find the minimum value of a plus b plus c. Find minimum value of a plus b plus c. So you know that a plus b plus c by 3, that is greater than equal to abc to the power 1 by 3. So a plus b plus c, that is greater than equal to 3 into abc, that is 27 to the power 1 by 3. That is greater than 3 into 3, that is greater than equal to 9. So what is the minimum value of a plus b plus c? That is 9. So minimum value will occur at equality, na? That means when a is equal to b is equal to c is equal to 3, that will give you minimum value, which is 9. But when there is some power involved, let there is a square b cube c to the power 4 is equal to 9, and we want to minimize the value of let 2a plus 3b plus 4c. We want to minimize this. Again, there are two approaches. First one, am greater than equal to gm. If you will check am greater than equal to gm, you want to break 2a into how many parts? You want to break 2a into 2 parts. Power is 2, so you want to break 2a into 2 parts. That means you will write a plus a. In the same way, 3b in how many parts? 3 parts. So you will write b plus c. 4c in how many parts? 4 parts. So you will write c plus c plus c plus c divided by 9 is greater than equal to a square b cube c to the power 4 to the power 1 by 9. Now this 2a plus 3b plus 4c divided by 9, that is greater than, what is this value? This is 9. 9 to the power 1 by 9. So 2a plus 3b plus 4c
that is greater than equal to 9 into 9 to the power 1 by 9. This is the minimum value of 2a plus 3b plus 4c. Or you can solve this question by proportionality concept also. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2a को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? यू विल डिवाइड 2a इन 2 पार्ट्स, so you will write 2a by 2. You will write 3b in how many parts? 3b parts, 3 parts, 3b by 3. 4c in how many parts? 4c in 4 parts, 4c by 4. That is equal to 2a plus 3b plus 4c divided by 9. This is the condition when this value will be minimum. So that means a is equal to b is equal to c is equal to, let the minimum value is equal to k. K is equal to 9. Now you have value of a in term of k, value of b in term of k, value of c in term of k. You need to find value of k. How to find value of k? You have one equation for that. You have this equation. You will put value of a, b, c here. So this will give you k by 9 whole square, k by 9 whole cube, k by 9 whole power 4, that is equal to 9, and value of k will give you the minimum value. So these two type of questions can be framed here. When sum is given, product to be maximized. When product is given, sum is to be minimized. This is clear to everyone. Now tell me this is clear to everyone. ये वे है थोड़ा सा रिवाइज करने का, जिससे मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चीजें कवर कर पाऊंगा. अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है then it is very easy to cover maximum things in 2 or 3 hours. एक मैं और एग्जांपल दिखा देता हूं लास्ट, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं. लेट करो कि तुम्हारे सामने दिया हुआ है, लेट यू हैव ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 27. ओके, एंड ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 27 दिया हुआ है, एंड यू वांट टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c. यू वांट टू मिनिमाइज दिस. ओके, यू वांट टू मिनिमाइज दिस, एंड this where a b c are positive real number, where a b c are positive real number. So you will write a will get divided into 2 parts, that means a by 2. 2b will get divided in 3 parts, that means 2b by 3. 3c will get divided in 4 parts, so 3c by 4. That is equal to a plus 2b plus 3c divided by 2 plus 3 plus 4. That means a by 2 will be equal to 2b by 3 will be equal to 3c by 4 will be equal to k by 7. So a is equal to कितना आ गया? That is 2k by 7. b कितना आ गया? That is 3k by 14. c कितना हो गया? That is equal to 4k by 21. Now you have a, you have b, you have c, and you want to find value of k because k is the minimum value. This is the condition when this a plus 2b plus 3c is equal to minimum. So this is equal to k. Now you need to find value of k. So put a value, b value, and c value in this particular equation. That means 2k by 7 whole square, 3k by 14 whole cube, and 4k by 21 whole to the power 4, that is equal to 27. Value of k will be your answer. ठीक है, value of k will be your answer. So two forms are there when sum is given and you want to maximize the value of product. Second form ये 9 लिख दे बेटा, 9 लिख दे, 2k by 9, 2k by 9 सब में आप कर लेना. सम मैक्सिमम प्रोडक्ट गिवन हो बेटा, you want to minimize the value of sum. You want to minimize the value of sum. When sum given, maximize product. When product given, maximize sum. Third form is when sum is given and you want to maximize and minimize the value of sum. You want to maximize or minimize the value of sum. ठीक है, जब sum given हो और तुम्हें you have to maximize or minimize the value of sum. जैसे लेट करो मेरे पास गिवन है कि a plus b plus c is equal to 9 है, ठीक है, एंड योर कंसंट्रेशन इज ऑन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. या तो तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होगा या कोई और चीज पूछ रहा होगा. ठीक है, अब हम लोगों की बात करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 गिवन एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे हमारा कंसंट्रेशन. उससे पहले हम लोग जल्दी से एक बार कॉची थ्योरम रिवाइज कर देते हैं कि व्हाट इज कॉची थ्योरम. कॉची थ्योरम क्या कहती है कि इफ यू हैव 1 2 3 4 5 6 दिस 6 नंबर्स यू कैन पिक एनी 3 पेयर. यू पिक्ड 1 into 3 plus 2 into 4 plus 5 into 6. According to question you can pick any 2 pairs. 1 into 3 मैंने 1 3 2 4 5 6 पेयर के ले लिया.
that whole square will always be less than equal to one number from here 1 square, any one number from here let 4 square, and any number from here let 5 square into 3 square plus 2 square plus 6 square. This is known as Cauchy theorem. So you can apply Cauchy theorem according to your convenience. जहां पे तुम्हारी जिस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम लोग Cauchy theorem अप्लाई कर सकते हैं. जैसे लेट करो कि तुम्हें यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 गिवन था और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे मेरा कंसंट्रेशन था. सो आई विल राइट a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 होल स्क्वायर that is less than equal to a square plus b square plus c square into 1 square plus 1 square plus 1 square. Now a plus b plus c is given as 9. 81 is less than equal to a square plus b square plus c square into 3. So you can find the maximum, you can find 81 by 3, that is 27. So this value is greater than equal to 27. So minimum value of a square plus b square plus c आ गई. अब इस पे मेनली क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है समझना. जैसे गिवन होगा कि x plus y is equal to 5 गिवन है, and they will ask you that find value of 3x square plus 4y square. Find the value of 3x square plus 4y square की मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछेंगे. ठीक है, लेट करो समझना. यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हम लोग कॉची यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और तुम्हें पता है जब तुम कॉची अप्लाई करो लेट यू हैव 4 टर्म्स a1 a2 b1 b2, लेट यू हैव 4 टर्म्स. व्हेन यू विल अप्लाई कॉची यू विल राइट a1 इंटू b1 a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 होल स्क्वायर दैट विल बी लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. दिस इज द कॉची थ्योरम. ठीक है, दैट मीन जो किसी नंबर का स्क्वायर टर्म आएगा दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, दैट वैल्यू विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ अंडरस्टैंड दिस 3x square is nothing but root 3x whole square. This 4y square is nothing but this is 2y whole square. That means we need root 3x, we need 2y, and we have to apply this also. That means when we will apply Cauchy theorem we will write root 3x into what value will be multiplied and it will give you x, that we can multiply this by root 3. When we will multiply this by root 3 will get cancelled out and you will get only x, and this term will go on the right hand side and that will give you 3x square term plus 2y into 1 by 2. This 2y term will go on the right hand side and that will provide you 4y square whole square that is less than equal to root 3x whole square plus 2y whole square into 1 by root 3 whole square plus 1 by 2 whole square. This term, this is nothing but x and this is nothing but y. So x plus y whole square that is less than equal to 3x square plus 4y square into 1 by 3 plus 1 by 4. Now this value is 5, so that is 25. 25 is less than equal to 3x square plus 4y square is equal to 7 by 12. So that would be equal to 25 into 12 by 7. That is less than equal to 3x square plus 4y square. So 3x square plus 4y square that is greater than equal to 25 into 12 by 7. That is the minimum value of 3x square plus 4y square. In this way you can apply Cauchy theorem. बहुत ही अच्छी थ्योरम है जिसका यूज करके काफी क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चंस का एक फॉर्मेशन हो सकता है तुम्हारे में. तो अगर कहीं पे दिया है सम दिया है, जब सम दिया है प्रोडक्ट है, सम है प्रोडक्ट है, यू कैन अप्लाई AMGM कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट सम AMGM कॉन्सेप्ट, सम एंड सम की बात हो रही है देन योर प्रोसेस शुड बी ऑन Cauchy थ्योरम. Cauchy थ्योरम पे तुम्हारा प्रोसेस. मैं एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए. लेट करो यू हैव 2x plus 3y is equal to 8. You have to use this equation and you want to maximize the value of x square plus 5y square. You want to minimize the value of x square plus 5y square. So you will write, that means you need x whole square plus you need root 5y whole square. You need this, you need x square and you need root 5y whole square. So first you will write x and you have also utilized, you have to utilize 2x plus 3y is equal to 8 also. So first you will write x into 2, this will provide you 2x plus you will write root 5y. Now root 5y will provide you 5y square,
but we need to convert this in 3y. That means you will multiply this by 3 by root 5. When you will multiply this by 3 by root 5, that will provide you 3y whole square, that is less than equal to x square plus 5y square into 2 square plus 3 by root 5 का whole square. Now I hope you got the idea. Complete. जिसने पहले पढ़ा हुआ है, जिसने पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करी हुई है, थोड़ा भी उसने अगर वो पहले पढ़ा हुआ है, वो उसको समझ आ गया होगा कंप्लीट. ओके, नहीं समझाऊंगा मैं, दो चीजें मैंने डिस्कस कर दी. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. है ना. फिर हम लोग आते हैं इसी पे जो हम लोगों ने, फिर हम लोग आते हैं कि मॉड के क्वेश्चंस पे कुछ लोगों को इश्यू है काफी, मॉड के क्वेश्चंस पे. ठीक है, एस्केलेटर टाइप क्वेश्चन बेटा हो चुके. ग्रुप जिस ग्रुप से आए हो प्लीज गो थ्रू दैट ग्रुप. मैंने कल ही एस्केलेटर का रिवीजन आप लोगों को करा दिया है. ठीक है, प्लीज गो थ्रू ग्रुप. एस्केलेटर रिवाइज में करा चुका हूँ. ठीक है, चलो मॉड के क्वेश्चंस पे आते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज द मॉड. ठीक है, मिनिमाइज वाले क्वेश्चंस किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करने हैं, मिनिमाइज वाले. ठीक है, yes you can put x in terms of y. then जब x और y के टर्म में रिप्रेजेंट, देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट क्योंकि वो मेथड सबको पता होते हैं तो मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा. यू कैन पुट x in terms of y, then there will be a quadratic equation in y, then you can apply that y is a real, then d is greater than equal to 0. If d is greater than equal to 0, you will get the range, you will get the minimum value, will get the maximum value also, but we will not go to that particular thing. So how to minimize and maximize the value of mod. Let you have x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3. सो अंडरस्टैंड दिस. और ये प्लस के लिए ही वर्क करेगा, माइनस के लिए यू हैव टू ओपन ऑल द मॉड, देन ओनली यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू. दिस विल वर्क ओनली फॉर व्हेन देयर इज प्लस साइन इन बिटवीन. जब प्लस साइन है देन दिस विल वर्क, एंड फॉर माइनस वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू फॉर माइनस साइन. और मॉक में भी तुमने नहीं देखा होगा किसी में भी, अगर तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं मॉड की, सो दे विल गिव यू प्लस साइन इन बिटवीन. वो प्लस साइन देंगे, अदरवाइज यू हैव टू ओपन ऑल द मॉड्स. तुम्हें सारे मॉड ओपन करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू. जब हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड की बात करते हैं, मतलब यहां पे दो मॉड के बीच का जो साइन है दैट शुड बी प्लस ओनली. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3. We want to minimize this. Minimum value of mod will always occur at maiden value. जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड होती है, देयर आर मेनी अदर वेज, बट हम लोग डायरेक्टली जो अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा मेथड है जो कैट में तुम कर सकते हो जल्दी, उसके वैसे हम लोगों ने काफी मेथड डिस्कस किए कि हाउ टू मिनिमाइज दिस, बट अभी हम लोग जस्ट सर इतने पर ही वर्क करेंगे कि हाउ टू मिनिमाइज मॉड विथ बेसिक अप्रोच एंड डायरेक्ट अप्रोच बेसिकली. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड विल ऑलवेज अकर एट मिडन. वो हमेशा मिडन पे अकर होती है. जैसे अगर इनको हम लोग जब किसी भी मॉड को वी विल रिप्रेजेंट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, then only you will get midden. जैसे हम लोगों ने लेट करो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस आर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यू विल से that minimum value will occur at 2. When you will put x is equal to 2 here, you will get 1 plus 0 plus 1, that means the minimum value will be 2. That will be the minimum value. अगर इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि लेट करो कि x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 plus x minus 4, what will be minimum value? You will say that minimum value will occur at mid value. ठीक है ना, मिडन पे. अब यहाँ पे 2 मिडन्स अलाउ करी, दैट मीन्स x is equal to 2 and x is equal to 3 as midden here. और बेटर ये रहता है कि जब तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो और 2 मिड वैल्यूज हो, टेक एवरेज ऑफ दैट. Let x is equal to 2.5. Average of 2 and 3 will be 2.5. So put 2.5, that will give you 1.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 1.5. There will be many values at which you will get the minimum value. But अभी हमारा concentration है कि तुम हमेशा minimum value किस पे find कर पाओगे. No need to check any other value. Just find minimum value at the average. So your answer will be 4. You will get the minimum value as 4. जैसे लेट करो मेरे पास दिया हुआ है x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3
plus x minus 4 plus x minus 5. There are 5 terms. 5 terms. You will say that minimum value will occur at middle value, that will be x is equal to 3. If I will increase one value, x minus 6, what will be the minimum value will occur at which particular value? You will say that x is equal to 3, x is equal to 4 are two mid values, so minimum value will occur at 3.5. ठीक है, मिनिमम. दैट इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट पे तुम्हारी जो वैल्यूज होती है उसको एक्ससीड और मिनिमाइज कर सकते हो. दैट इज नॉट द मिनिमम वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट्स. मिनिमम वैल्यू विल ऑलवेज अकर एट मिड. सो 3.5 पे तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. अब लेट करो यहीं पे मॉड पे. अभी तो जैसे मॉड जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1. कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1. इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट 1, लेट करो यू वांट टू मिनिमाइज दिस. मॉड x minus 1 plus mod 2x minus 1 plus mod 3x minus 1. You want to minimize this. So just write it in this way. Mod x minus 1 plus 2 times of x minus 1 by 2 plus 3 times of x minus 1 by 3. Mod x minus 1 plus mod x minus 1 by 2 plus mod x minus 1 by 2 plus mod x minus 1 by 3 plus mod x minus 1 by 3 plus mod x minus 1 by 3. That means you have 6 terms now. When you have 6 terms, that means middle term will be third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ टर्म तुम्हें क्या वैल्यू देंगे? यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/3. नाउ व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस? दो मिडिल टर्म आ रहे हैं, एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज विल बी 1/2 प्लस 1/3/2. दैट मीन्स एवरेज विल बी 5/12. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/12 विल प्रोवाइड यू द मिनिमम वैल्यू. अब जैसे डायरेक्टली हम लोग बार बार ये ओपन तो ना करें, इससे डायरेक्टली क्या है कि दिस टर्म, दिस विल प्रोवाइड यू 1 टर्म, दिस विल प्रोवाइड यू 2 टर्म्स, दिस विल प्रोवाइड यू 3 टर्म्स, this will provide you 1 term, this will provide you 2 terms and this will provide you 3 term. So 6 term total हो जाएंगे. 6 term totals होंगे. middle term will be third term and fourth term. Now 1 plus 2 third term यहाँ पे आएगा, fourth term यहाँ पे आएगा. That means x is equal to 1/2 will be third term, x is equal to 1/3 will be second term. अब इसका जो एवरेज होगा 1 plus 2 plus 1/3/2 that is equal to 5/12. That will give you the minimum value. So you can solve this type of questions with help of this concept. Minimum and maximize कर सकते हो, minimize और maximize कर सकते हो. अब मॉड पे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे कल ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था मॉड पे. यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, उसी से तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेट करो कि दिस इज इक्वल टू 100. ये कल एक ने क्वेश्चन पोस्ट किया था, मैंने सॉल्यूशन भी अपडेट किया था, तो वर्क कराते हैं कि mod x plus 1 plus mod x plus 2 plus mod x plus 3 plus mod x plus 4 plus mod x plus 5 is equal to 100 दिया होगा. Now how to solve these type of questions कि जहाँ पे कोई वैल्यू, हमेशा ट्राई ये करो कि you have to check on the extreme values. You should start checking from the extreme values. Extreme values क्या है कि जब तुम अरेंज कर रहे हो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5. दोज आर एक्सट्रीम वैल्यूज. सो यू विल start checking from extreme values. Now start checking from extreme values when you will put x is equal to -5. When you will put x is equal to -5, when you will put x is equal to -5 here, you will get 4 here, 3 here, 2 here, 1 here and 0 here. That means the value will be 10. Now when you will put x is equal to -6 here, this value will get increased by 1, this value will get increased by 1, this value will get increased by 1, this value will get increased by 1 and this value will also get increased by 1. So that means value will be 15. This particular concept is not for this only this question, क्योंकि इस क्वेश्चन में easy है पहचानना वैल्यूज. तुम्हें दो वैल्यूज easily मिल सकती है, तो हो सकता है कि तुम ये मेथड प्रीफर ना करो, लेकिन ये मेथड हर जगह पे वर्क करेगा जहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल के भी बन जाते हैं, जहाँ पे हिट एंड ट्रायल इज नॉट दैट ईजी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ईजी कॉन्सेप्ट जहाँ पे तुम जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व. ठीक है, तो ये कमेंट वाले ना, x इज इक्वल टू -7. व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू -7 यू विल गेट 20. नाउ फ्रॉम 10 यू वांट टू रीच टू 100. 10 से तुम्हें 100 तक रीच करना है. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, दिस इज अ AP विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5. दिस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5. लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 into 5. That means 90/5 plus 1 that is equal to number of terms. तो number of terms कितने आएंगे? That would be 19.
19 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहां से 100 तक पहुंचाने में उसे, मतलब -5 से 19 टर्म आएंगे तुम्हें 100 तक पहुंचाने में, 19 टर्म। तो मतलब -5 से अगर 19 टर्म की हम लोग बात करें तो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस? What will be the last value of x which will satisfy this? No, just tell me what will be the last value of x. -5 से 19 टर्म पीछे जा रहे हो, -5 से, नॉट -25, थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी बताओ, what will be the last value which will satisfy this? That would be -23. बीच में एक जीरो भी आएगा, -5, -6, -7, -8, ऐसे करते 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 19 वैल्यूज तक जाना है, दैट विल बी -23 ना, दैट विल बी द 19 वैल्यूज, -23 विल सेटिस्फाई। इन द सेम वे when you will put x is equal to -1 here, when you will put x is equal to -1 you will get 10, again you have to go 19 values, again you will go 19 values, -1, 0, 1, 2, 3, so you will check that x is equal to 17 will the value ना, 19 वैल्यू अगर पीछे जाओगे तो that would be x is equal to 17, so these two values will satisfy this, so your answer will be -6. Now understand why we don't need to check for these values, the middle values, हम लोगों को middle values to check करने की need क्यों नहीं आई है, because -5 पे जो वैल्यू है that is 10, -1 पे जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 10, एंड आफ्टर दैट वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, अब बिलो दैट वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। -5 से जब हम लोग पीछे आ रहे हैं, -6, -7, -8 वैल्यूज आर गेटिंग इंक्रीज, -1 से जब आगे जा रहे हैं, -1, 0, 1, 2, 3 वैल्यूज आर गेटिंग इंक्रीज, दैट मीन्स इन बिटवीन -1 and -5 वैल्यूज विल गेट डिक्रीज्ड। If values will get decreased, you will not get 100, that will get reduced from 10 also. So no need to check for middle values, you just need to check for x is equal to 5 की -5 के बाद वाली और -1 से पहले वाली values, ठीक है। So you can directly solve this type of questions with help of extreme concepts, extreme concept की help से इस type के questions को solve कर सकते हो। I hope this concept is clear to you. ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की यहाँ पे, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फ्रैक्शन एंड इंटीग्रल कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन एंड इंटीग्रल। इस पर बेस्ड एक बार कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज़्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं है, देन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको कि किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन और इंटीग्रल की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ऑल्सो, इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ऑल्सो ना, बट फ्रैक्शन वैल्यू दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन होगा दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, है ना, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 1 के इक्वल नहीं होगी, अगर 1 हो जाएगी दैट विल बिकम इंटीग्रल पार्ट, तो फ्रैक्शन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। अब कोई भी अगर एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, लेट करो 2.3 है, सो वी कैन राइट इट एज 2 + 0.3, 2 + 0.3, so that number is equal to integral plus fraction, any number can be represent in terms of integral and fraction, किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे होता है तुमसे कह देगा, लेट करो 3x + 2 ऑफ, लेट कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं, लेट करो 3x + 2 that is equal 3x plus 2 fractional x that is equal to 5 integral x plus 1, and we want to find number of values which will satisfy this, ठीक है। या तो कोई एक सेकेंड कोई और क्वेश्चन आता है, लेट करो x plus x is equal to 3 this plus 2 time of fractional x, ठीक है, 2 plus x that is equal to 3 time of this plus 2 time of fractional x, and we want to find number of values which will satisfy this, हम लोगों को इसकी number of values बतानी है जो इसको satisfy करे। this is integral x, this is fractional x, integral x को हम लोग लिख देंगे i से रिप्रेजेंट कर देंगे और fractional x को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे f से, और जो x होगा that is summation of i plus f
that is summation of I plus s. So how to solve this type of questions, how to find number of values without hit and trial, किस तरह से हम लोग solve करते हैं कि x को हम लोगों ने लिख लिया I plus f, 3i plus 2f, this is 3i plus 2f. Now you note that, now तुम्हें ये चीज पता है कि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक चीज पता है, अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें नोन है, दैट फ्रैक्शन वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 1. The fraction value will lie between 0 to 1. That is the only information we know. तो हम लोग हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, our motto is to convert whole value in terms of fraction. जैसे हम लोग यहाँ पे अगर लिखें, so our f will be equal to minus 2i plus 2. That is the value of f. That is the value of fraction. Now we know that fraction will lie between 0 to 1. So basically minus 2i plus 2 will lie between 0 to 1. So we can say that minus 2 will lie between minus 2i to minus 1. Minus 2i to minus 1. So we can say that minus 2i is less than 1. Or we can say that I is greater than minus 1 by 2. This is the first information. Or we can say that minus 2i is greater than equal to minus 2. So we can say that I is less than equal to 1. So I कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है? I will vary from minus 1 by 2 to 1. Now what is I? I है क्या? I is integral ना? I is integral value. So I की कौन कौन सी minus 2 से 1 तक में I की कौन सी वैल्यू आई? I is equal to 0 and 1. These are two values which will satisfy I. Now I is equal to 0 and 1 आया. When I is equal to 0, जब I की वैल्यू, जिस समय I की वैल्यू 0, अच्छा ये माइनस 2i बाई 2 है, ठीक है, चलो ठीक है कोई नहीं, ये 2 के इक्वल कर लो, माइनस 2i प्लस 2, ठीक है. जब I की वैल्यू 0 के इक्वल आई है बेटा, ये समझ गए हो ना, प्रोसेस समझा रहा हूं. हो सकता है क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसा हुआ हो कि तुम्हें आंसर ना मिले, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है. सो I की वैल्यू तुम्हें मिल गई. जब I की वैल्यू मिल गई, यहां से f की वैल्यू फाइंड कर लोगे कि नहीं? टेल मी. जब I की वैल्यू तुम्हें मिल गई, I इज इक्वल टू 0 एंड 1 मिल गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ f और नॉट. जल्दी बताओ, यू विल बी एबल टू फाइंड वैल्यू, क्योंकि f को I के रिस्पेक्ट में ही तुमने सॉल्व किया है ना, है ना. I को f के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया. जब I इज इक्वल टू 0 होगा तो f इज इक्वल टू 2 होगा, विच इज नॉट अ पॉसिबल केस. व्हेन I इज इक्वल टू 1 होगा तो f कितना आएगा? दैट विल बी 0. दैट मीन्स व्हेन I इज इक्वल टू 1 then f will be equal to 0. When I is equal to 1 then f will be equal to 0. तो हम लोग कह सकते हैं कि x is equal to क्या होता है? That is I plus f. I plus f, that means x is equal to 1 will satisfy this. X is equal to 1 will satisfy this. That means अगर तुम यहाँ x is equal to 1 पुट करो इस इक्वेशन में, चेक करो, जब तुम x is equal to f1 पुट करोगे, जब x is equal to 1 पुट करोगे, you will get 2 plus 1 is equal to 3 टाइम ऑफ 1 प्लस 2 टाइम ऑफ 1 का फ्रैक्शन. अब समझो, जो 1 का फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी 0 ना, तो ये तो 0 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया. हाँ, दैट्स नॉट अलाउड. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग I इज इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 0 केस ओनली. दैट मीन्स वन वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस, दैट विल बी x इज इक्वल टू 1. That will satisfy. So in this way you can find this type of questions, and these are important question for CAT and for ZAT also. इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन ZAT में भी काफी ज्यादा होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन ZAT में भी काफी ज्यादा होता है तुम्हारे, और CAT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ZAT के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा जस्ट कंसंट्रेशन क्या है? यू जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शन टर्म. अगर तुम फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर पाओगे देन यू विल बी एबल टू. तुम्हारा कंप्लीट मोटो ये है कि राइट x इन टर्म्स ऑफ I प्लस f. कैपिटल x को I प्लस f के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, देन f के टर्म में ले जाओ से, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसकी हेल्प से तुम सॉल्व कर सकते हो. फिर एक टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है बेटा जहां पे तुमसे पूछा जाता है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस पर बेस्ड कैट में क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार, काफी बार इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन तुम्हारे में बने हुए हैं. तो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो. कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे तुमसे कह देगा कि एक fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लेट 2 माइनस एक्स एंड x माइनस 2 दिया हुआ है, एंड यू वांट टू फाइंड मैक्स ऑफ fx तुम्हें फाइंड करना है.
you want to find max of fx. ठीक है, min of 2 minus x minus 2 it's given and they will ask you find the maximum of fx. अब समझो, पहले थोड़ा सा एक बार ग्राफ समझ लो, then you will get a perfect idea. जैसे लेट करो मेरा एक ग्राफ मेरा ये बन रहा है, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है. अच्छा क्रिस्टियन, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है डिक्रीजिंग. ठीक है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वन इज इंक्रीजिंग अदर वन इज डिक्रीजिंग. अब मुझे बताना है कि इन दोनों के मिनिमम का ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज लेट ए बी सी डी ई. अभी हमारा कंसंट्रेशन है कि ए बी ई पे हमारा कंसंट्रेशन है, ए बी ई पे. मिनिमम पार्ट कितना है? दिस इज द मिनिमम पार्ट, दिस वन इज द मिनिमम पार्ट. नाउ अगर हमारा कंसंट्रेशन बी डी सी पे हो देन व्हाट इज द मिनिमम पार्ट? दिस इज द मिनिमम पार्ट. Now if I'm asking that what is the maximum value of minima, what is the maxima of minima, तो ये पार्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना. इस मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू किस पार्ट पे आ रही है? इस पार्ट पे आ रही है. दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस और नॉट? दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस ना. तो इंटरसेक्शन मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइनें, वहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा? मैक्सिमा ऑफ मिनिमा मिलेगा. इसी तरह लेट करो हमारा ये मैक्सिमा दिया होता, मैक्सिमा ऑफ 2 माइनस. अभी मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं कैसे करना है, पहले बेसिक समझ लो कि मैक्सिमा दिया हुआ है 2 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 2 एंड मैक्सिमा का मिनिमा फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमा? दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमा. नाउ व्हाट इज द मिनिमा ऑफ दिस मैक्सिमा? अगेन मिनिमा ऑफ दिस मैक्सिमा इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट you will get minima of this maxima. So how to solve this type of question? You just need the intersection point. At intersection point you will get the minima of maxima or maxima of minima for the linear equations. ठीक है ना, जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा दे विल गिव यू सम रेंज. जैसे मान लो कि अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना होता और कह देता कि 1 से 3 में उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, तो यू विल जस्ट पुट 1 2 3 एंड यू कैन चेक दैट मैक्सिमम. बट वो टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेशन रेयर होता है. तुमसे ये पूछेगा कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एक डिक्रीजिंग होगा एंड यू वांट टू फाइंड मिनिमम ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम ऑफ मिनिमा. जैसे हमारे पास यही फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका हम लोग करके सॉल्व देख लेते हैं. मिनिमम ऑफ 2 माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस 2 एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस, तो यू विल जस्ट इक्वेट दिस दैट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. दैट मीन 2x इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2. सो इफ वी वांट, तो मिनिमा कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 0,0. दैट मीन्स 0. दैट मीन्स इस मिनिमम की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 0. दैट वैल्यू विल रिमेन एज 0. अब इसी चीज को 3 टर्म के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे लेट करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मिन ऑफ एक्स माइनस 2 2 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स दिया हुआ है एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज द एफ एक्स. इस मिनिमा की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, this function is decreasing function and this function is decreasing function. No need to equate decreasing and decreasing. Always intersection point will occur on increasing decreasing or increasing decreasing. ठीक है ना, तो decreasing decreasing में तुम्हें maximum minimum local maximum minimum मिलने के chances नहीं होते, तो हम लोग increasing decreasing को equate करते हैं. तो first when you will equate x minus 2 to 2 minus x, you will get x is equal to 2. That means the minimum of 0, 0, minus 1. So what is the minima here? You will get minima as minus 1. यहाँ पे minimum आई minus 1. Second case लोगे, second case that means x minus 2 is equal to 1 minus x. That means 2x is equal to 3. So x is equal to 3 by 2. So that means minima of 3 by 2 minus 2, 2 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2. That will give you minima of minus 1 by 2, 1 by 2 and minus 1 by 2. That what is the minimum value? Minus 1 by 2. तो अब दो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास आई है. एक मिनिमम वैल्यू आई है -1, एक मिनिमम वैल्यू आई है -1 by 2. अब तुमसे पूछ क्या रहा है कि इस मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम मुझे फाइंड करनी. वी वांट टू फाइंड मैक्सिमा ऑफ दिस मिनिमा. तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सी है? इन दोनों मिनिमम में से व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज -1. So what is your answer? Answer will be -1. So you can solve this type of questions with help of equality. This is clear?
ठीक है, -1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, नॉट -1 निगेटिव में है ना, सो -1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा यहीं पे तुमसे पूछ लेता, ठीक है, अगर यहीं पे तुमसे पूछ लेता कि मिनिमा ऑफ वो बतानी है, मिनिमा ऑफ मिनिमा, दैट विल नॉट बी, यस -1/2 बेटा, -1/2, अरे -1/2 एडिट कर चुका हूँ, देर पहुंचता है बेटा, -1/2 एडिट कर चुका हूँ, ठीक है। यहां पर तुमसे क्या पूछ सकता है, मिनिमा ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमा ऑफ मिनिमा, दे कैन आस्क दीज थिंग्स, मिनिमा ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमा ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये चीजें पूछ सकते हैं तुमसे यहां पर। तो इस टाइप के 2 पे 3 पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, 2 फॉर्म में या 3 फॉर्म में क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे एडिट कर चुका हूँ, -1/2 मुझे भी पता है बेटा, -1/2 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब हम लोग इसी पे आते हैं, जैसे मान लो कि एपी का कॉन्सेप्ट, जैसे डिफरेंस एपी की बात करते हैं, डिफरेंस एपी कॉन्सेप्ट तुमसे। अब डिफरेंस एपी अगर तुम्हें पता हो कि कोई भी जो एपी सीरीज होती है, जो अरिथमेटिक, minimum of minima will be possible for a limited range, minimum of minima will be possible for a limited range, that will not for overall range, मिनिमम रेंज पे लिए होगी तो वहां पे हम लोग अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है इस पे। अच्छा हम लोग डिफरेंस एपी पे बात करते हैं, डिफरेंस एपी पे कि किस तरह से डिफरेंस एपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंस एपी पे तुम्हारे में। डिफरेंस एपी जैसे टीएन इज इक्वल टू, जैसे हम लोग एपी की बात करें तो तुम्हें पता है कि एपी का nth टर्म क्या होता है, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन ना। सो एपी का जो nth टर्म है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन, तो एपी का जो nth टर्म होता है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कि tn इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू an प्लस बी की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन, दैट मीन t1 इज इक्वल टू a प्लस बी, t2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी एंड सो ऑन। अगर इसका डिफरेंस करेंगे दिस d इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो जो AP का nth टर्म बनता है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन। जो डिफरेंस AP का nth टर्म बनता है बेटा, जो डिफरेंस AP का nth टर्म बनेगा दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन, दैट इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन। डिफरेंस AP का जो nth टर्म का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे s इज इक्वल टू तुमसे कह दे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 एंड सो ऑन, फाइंड 20th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन देखे होंगे तुमने इस टाइप के, फाइंड 20th टर्म, पहले दे दिया 1 2 4 7 11 16, मतलब अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो 1 2 3 4 5, that means difference is in AP. If difference is in AP, that is known as difference AP series, ठीक है, that is known as difference AP series when difference is in AP. How to solve this? You will write that Tn is equal to, this is method 1, दो method discuss कर दे रहा हूँ, Tn is equal to an square plus bn plus c, this will be the general form and you just need to find values of a b c. How to form values of a b c? You need to form 3 equations in a b c. So you will put n is equal to 1. When you will put n is equal to 1, that will give you a plus b plus c, that is equal to 1. When you will put n is equal to 2, that is 4a plus 2b plus c, that will give you 2. When you will put n is equal to 3, that is equal to 9a plus 3b plus c, that is equal to 4. Now you need to find 3 equations, 3 variable, you need to find values of a b c. So क्या करोगे, this is your equation 1, this is your equation 2, equation 3, equation 2 minus equation 1 करो, you will get 3a plus b is equal to 1. Equation 3 minus equation 2 करो, you will get 5a plus b is equal to 3. Now again this equation minus this equation, so 2a is equal to 2, so a is equal to 1 आ गया. If a is equal to 1, what is the value of b? b is equal to minus 2 आ गया. b is equal to minus 2, a is equal to 1 बन गया. सॉल्व कर सकते हो ना, 3a plus b is equal to 1, 5a plus b is equal to, this is 2, ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो a is equal to 1/2 बन गया, सो 1/2 मतलब b is equal to minus 1/2 बन गया, c कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सो दैट इज n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर Tn. जस्ट a b c की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल गिव यू योर Tn, तुम्हारे Tn की वैल्यू आ जाएगी. अब ये मेथड 1, अब तुम्हें t कौन सा निकालना है, t20 निकालना है, जस्ट पुट n इज इक्वल टू 20, सो यू विल गेट 20 स्क्वायर माइनस 20/2, दैट विल बी योर आंसर, दिस विल गिव यू nth टर्म, 20th टर्म मिल जाएगा. दिस इज वन मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये हर क्वेश्चन जो डिफरेंस एपी का होगा यू कैन सॉल्व विथ हेल्प ऑफ दिस. अब अगर लेट करो Sn निकालना होता, तो Sn क्या होता है, Sn विल बी सिग्मा ऑफ Tn ना, Sn विल बी
यस दैट वो, बट तुम्हारे में सेकंड डिफरेंस पे नहीं देगा क्वेश्चन, वो 3 डिग्री को सॉल्व करना दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क ना, तो 2 डिग्री तक बहुत ज्यादा डिफरेंस एपी तक पहुंचाते हैं तुम्हारे, ठीक है। a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, दैट मीन सिग्मा ऑफ n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है। सो सिग्मा ऑफ n स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ n/2, इतना तो तुम्हें एटलीस्ट करना पड़ेगा। दूसरा भी अगर मैं बताऊंगा, स्टिल यू हैव टू वर्क एटलीस्ट, दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं। तो सिग्मा एन स्क्वायर का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, दैट इज n+1 2n+1/6 माइनस सिग्मा एन का पता है तुम्हें nn+1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल प्रोवाइड यू Sn। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है कि s इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + 16 एंड सो ऑन, लास्ट में ये Tn है। यहां पे फिर से एक बार s लिखो और एक एक टर्म लीव करके लिख दो, 1 + 2 + 4 + 7 + 11 एंड दिस करते करते यहां पे प्लस Tn आ गया। इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, तो 0 इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 करते माइनस Tn आया, यहां पे Tn ले आओ, तो Tn विल बी इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे ये सीरीज देखो, यहां पे कितने टर्म आए, दिस विल बी n टर्म, यहां पे कितने टर्म आए, दिस इज इक्वल टू Tn आ गए, n टर्म्स आए। अगर तुम यहां से देखो तो दिस सीरीज इज अ AP series, this is an AP series with terms of n-1 term, so that would be Tn is equal to 1 plus n-1 into n plus 1/2 होता है, that is so 2 plus n square minus n/2, that will give you your answer। जो भी तुम्हारा मतलब उसके टर्म में निकाल लेना अपना ना, जो भी तुम्हारी वैल्यूज आ रही है तुम उसके टर्म में Tn की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे n इज इक्वल टू, तुम n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, चेक करना हो कि Tn सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हो कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे यू विल गेट 1, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 4 + 2 4 - 2 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे 9 - 3 6 + 2 4 4 आ जाएगा, 5 पुट करोगे एंड सो ऑन, यू विल गेट योर आंसर, जो भी तुम्हारे सामने वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से Tn की वैल्यू तुम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हो। अब Tn की जगह अगर Tn गिवन हो, कहीं पे भी Tn तुम्हारा गिवन है, लेट करो 3n² + 5n Tn गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड Sn इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ Tn निकालना है, तो दैट विल बी सिग्मा ऑफ 3n² + 5n कर सकते हो, दैट मीन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ n² + 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, डिफरेंस जीपीवीसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व, अगर डिफरेंस जीपी का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए कि लेट करो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, लेट करो कोई और सीरीज दिखा देते हैं तुम्हें, जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, ठीक है, ऐसे करके सीरीज आगे जा रही है Tn टर्म। तुम्हें इसका T28 टर्म निकालना है, T28 टर्म निकालना है। इनका डिफरेंस देखोगे दिस इज 2, इनका डिफरेंस देखोगे दिस इज 4, इसका डिफरेंस देखोगे दिस इज 8, दैट मीन दिस इज अ डिफरेंस जीपी सीरीज, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस जीपी सीरीज। सो यू विल राइट S इज इक्वल टू 1 + 3 + 7 + सो ऑन, ऐसे करके लिखोगे। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, जो 0 इज इक्वल टू 1 + 2 + 4, 1 + 2 आया, +4 आया, +8 आया एंड सो ऑन, माइनस Tn। सो Tn विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 4 +8 एंड सो ऑन। अब तुम्हारे सामने ये कौन सी सीरीज बन गई, दिस इज अ जीपी सीरीज विथ n टर्म्स, n टर्म्स की जीपी सीरीज बन गई, a(r⁻n−1) डिवाइडेड बाई r-1, सो 1 × 2(n−1) डिवाइडेड बाई 2-1, सो Tn क्या बन गया, दैट इज 2(n−1), दैट इज द nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो कोई डिफरेंस जीपी सीरीज दी है, स्टिल यू कैन सॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। अब तुम्हें Sn निकालना होगा, तो Sn विल बी अगेन सिग्मा ऑफ Tn, यू कैन फाइंड Sn।
कॉमन टर्म्स देखो कैसे निकाले जाते हैं, जैसे बच्चा पूछ रहा है कॉमन टर्म्स का, एक बार बता देता हूँ। कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो दो सीरीज दी हुई है 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते लास्ट टर्म मतलब लेट करो कि लास्ट टर्म 101 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी सीरीज ऐसे दी है 2 5 8 11, ऐसे करते करते लास्ट टर्म कुछ भी मान लो, कोई भी एक लास्ट टर्म दिया हुआ है 203, ऐसे करके कोई दिया हुआ है, कोई भी लास्ट टर्म मतलब जो ग्रेटर देन 101 है, ठीक है, ग्रेटर देन 101 है। अब तुम्हारे सामने 1 2 3 5 5 8 7 11 ऐसे करके ये दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता करना होता है जो न्यू सीरीज बन रही है उसमें फर्स्ट टर्म कौन सा कॉमन है, दैट इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म इज कॉमन इज 5, ए इज इक्वल टू 5 हो गया। डी कैसे निकालते हैं, डी विल बी एलसीएम ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के एलसीएम के इक्वल होता है, तो एलसीएम ऑफ D1 कितना है फर्स्ट सीरीज का एलसीएम, दैट इज 2, सेकंड सीरीज का अगर एलसीएम देखे दैट इज इक्वल टू 3, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 6, दैट विल बी। अब लेट कर लो कि n नंबर ऑफ टर्म्स, दीज आर कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट इज n, तो अगर मैं nth टर्म की जो मेरी सीरीज जो न्यू सीरीज बनी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11, नेक्स्ट टर्म क्या होगा दैट इज 16 एंड सो ऑन। तो लेट करो कि n कॉमन टर्म है, तो nth टर्म क्या होगा दैट वुड बी tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, दैट इज nth टर्म। ये जो भी nth टर्म रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म रहा होगा nth टर्म, बट दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 101, क्योंकि जो भी इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म रहा होगा वो 101 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आफ्टर दैट 101 के बाद कोई भी कॉमन टर्म क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज, सो द मैक्सिमम कॉमन टर्म विल बी लेस देन इक्वल टू 101 ओनली, दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 6 दैट इज लेस देन इक्वल टू 96, सो n माइनस 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 16, so n will be less than equal to 17. That means what is the number of common terms? Number of common terms is equal to 17. दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम क्यों होंगे बेटा, ये 203 नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी होते रहे, लास्ट टर्म विल बी रिमेन एज कांस्टेंट ना, इससे ज्यादा तो कांस्टेंट में जा ही नहीं सकते, तो 101 विल बी द लास्ट टर्म विच विल बी द कांस्टेंट हियर, इससे ज्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 101 से आएगा लेस, तो दैट विल बी n इज इक्वल टू 17 विल बी द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। एक बार टेलीस्कोप मेथड भी देख लो, व्हाट इज टेलीस्कोप अप्रोच, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे लिखा हुआ है मेरा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 1/20 इंटू 21 इंटू 22। वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हम लोगों को ये सॉल्व करनी, तो हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि 1/, पहले आराम से समझ लेना, दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा आराम से समझ जाओगे, 1/n माइनस 1 इंटू डी एंड द फर्स्ट टू टर्म हेयर 1/1 इंटू 2 माइनस लास्ट टू टर्म हेयर 1/21 इंटू 22। वॉट इज n हेयर, n आर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, एक पर्टिकुलर सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एक ही टर्म में कितने वो है वैल्यूज हैं 3 है, तो n की वैल्यू 3 आ गई, 3 माइनस 1। व्हाट इज d हेयर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1/2 माइनस 1/21 इंटू 22, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1/21 इंटू 22, दैट इज योर आंसर। सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। एक और दिखा रहा हूं, जैसे लेट करो दिया हुआ है 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1/4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, 1/6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12। बेटा नॉर्मल हो जाती, नॉर्मल कर लो आप, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 28। जैसे हम लोगों को ये सॉल्व करना है, इतना लेंथी नहीं आएगा, थोड़ा कम छोटा आता है, इतना लेंथी मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो 1/n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी अब कितना हो गया 2 हो गया। फर्स्ट के 3 टर्म, लास्ट टर्म लीव करोगे, दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 6 माइनस
फर्स्ट टर्म लीव करोगे लास्ट के 3, 24 इंटू 26 इंटू 28, दैट विल गिव यू योर आंसर, दैट विल गिव यू योर आंसर, तुम्हारा आंसर जो, ठीक है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दिया है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, कैट 2017 का क्वेश्चन है, 1/101 इंटू 102, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम्हें लिखोगे 1/n-1, n कितना है 2, 2 - 1 इंटू d कितना है 1, 1 फर्स्ट टर्म लोगे लास्ट टर्म लीव करोगे 1, माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लीव कर दोगे 102, दैट विल बी योर आंसर। 1/2 - 1 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 102, तो 101 डिवाइडेड बाई 102, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम इससे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो 2 to the power n जो सम था बेटा, अगर इसका समेशन करोगे, मान लो n = 1 से n तक कर रहे हो, तो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power n. This is again a GP series with n terms. So you can apply a r to the power n-1 divided by r minus 1. That means 2 into 2 to the power n-1 divided by 2 minus 1. ठीक है। फिर अगर समेशन है न्यूमरेटर में, लेट करो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3, दैट वाज जो लास्ट अभी हम लोगों ने सीखा, दैट 1/n-1 इंटू डी इंटू 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट वाला, ठीक है। दैट वाज फॉर डिनोमिनेटर, जब वो टर्म किस में दियो, डिनोमिनेटर में दियो। अगर वो न्यूमरेटर में टर्म दिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, दैट इज 20 इंटू 21 इंटू 22, एंड यू वांट टू फाइंड सम ऑफ दिस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, दैट इज इक्वल टू, अगर Sn का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, दैट इज इक्वल टू n+1, क्या बेटा Tn, अगर एक सेकेंड रुक जाना, बता रहा हूं, Tn इज इक्वल टू 2/n² प्लस n दिया हुआ है, तो 2/nn+1 हो गया, इसको फैक्टर कर लो, 2/1 माइनस n/1 प्लस n हो गया, दिस हो गया। अब तुम इसमें T1 रखो, 2/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, T2 रखो, 1/2 माइनस 1/3, एवरी टर्म विल गेट कैंसिल आउट, जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मिल जाएगा तुम्हें सिर्फ, है ना। यू कैन सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वे। अगर Tn इज इक्वल टू 2n, Sn यहाँ पे इसको फैक्टर करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से बेसिकली हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट उतना लेंदी क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास 3 टर्म वाला आ रहा है, देन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो हम लोग बेसिक अप्रोच एक वो अप्रोच बना लिया है जिससे हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को लगाना है, जैसे मान लो कि हम लोगों को यहाँ पे टेलीस्कोप, एक सेकेंड, टेलीस्कोप हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, पहले 2 टर्म के लिए बता दे, प्लस 4 इंटू 5, यहाँ तक हम लोगों को लगाना है, ठीक है। समझो अगर हम लोग इसका नॉर्मल सम करें तो देखो दैट इज 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, दैट सम इज 40 सम आ रहा है। अब समझना क्या फॉर्मूला है, n+1, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1/n+1 इंटू 1/d, समझना यहाँ पे, ठीक है, 1 दैट इज जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है उसको एक एक्सीड कर दो कॉमन डिफरेंस से, 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस, अभी 3-4 एग्जाम्पल दूंगा समझ जाओगे, 2 इंटू 1 इंटू से पहले वाला एक टर्म, 2 इंटू 1 इंटू 0, अभी 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। n की वैल्यू यहाँ पे वही है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 2 + 1 3, कॉमन डिफरेंस इज 1, 4 इंटू 5 इंटू 6, अगर तुम इसको सॉल्व करो यू विल अगेन गेट 40, द सेम आंसर 40 आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं और शो कर दे रहे, जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस ऐसे करते करते 20 इंटू 21 इंटू 22, ठीक है, यहाँ तक है। तो यू विल राइट 1/n+1, n+1 मतलब 1/4 इंटू जो लास्ट टर्म दिया है 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 माइनस
3 into 2 into 1 into 0. 3 into 2 into 1 into 0. So you will get your answer. This term will become 0. So your answer will be 20 into 21 into 22 into 23 divided by 4. That will be your answer. Clear है? ठीक है. फिर तुमसे कभी कभी पूछ सकता है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स. ये बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कैट. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स. मैं क्वाड्रेटिक के लिए नहीं बता रहा हूँ कॉमन रूट्स, बिकॉज सबने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक के लिए. अगर 3 डिग्री के लिए कहीं पे कॉमन रूट आ जाता है, जैसे लेट करो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड अनदर इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर plus let 4x plus 1 equal to 0, and they are asking what are the number of common roots in these two equations. What are the number of common root. If numbers are non-repeating, then you cannot apply telescope method. Then you should know basic approach, how to form tn term. tn से sn आएगा, है ना. उस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. This is your equation 1, this is your equation 2, and we want to find number of common root. So you will write first equation minus second equation. Our motto is to eliminate the highest power. हमारा मोटो रहता है जब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हम लोगों को निकालने होते हैं, तो हमारा मोटो रहता है टू एलिमिनेट द हाईएस्ट पावर. अगर हम लोग हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट कर पाएंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स इजिली. तो हमने हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट किया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन किया. यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. That means x is equal to 0 and x is equal to 2. Now x is equal to 0 and 2 need not to be common roots of this equation. These can be false root also. ये जो x is equal to 0 and 2 आए हैं, these can be false root also. So when you will get x is equal to 0 and 2, you should put them in original equation also. जब original equation में put करोगे, then you will get an idea that these equations are satisfying the original equation or not. अगर satisfy करते हैं, then this will be the common root. अगर satisfy नहीं कर रहे हैं, then this will be the not the common root. This will be false root. जैसे मैंने x is equal to 0 put करूँगा. अगर x is equal to 0 first equation को satisfy कर रहा है, no, x is equal to 0 is not satisfying the first equation. अगर फर्स्ट इक्वेशन ही को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, देन कॉमन रूट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ कॉमन रूट. नाउ यू विल पुट x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? नो, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 and 2 आर फॉल्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. False root, that means what is the number of real roots of this, number of common real roots? That will be 0. So there are 0 common root in this equation. अब लेट करो यहीं पे तुमसे ऐसे पूछ लेता कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड लेट 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब तुम्हारा मोटो क्या रहता है? हमारा मोटो हमेशा ये रहता है टू एलिमिनेट द एक्स क्यूब. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2 एंड रिपीट द प्रोसेस. फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन एंड देन चेकिंग. यू विल रिपीट द प्रोसेस, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड रिपीट द प्रोसेस. मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एंड देन फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, एंड देन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट. जो ज्यादातर क्वेश्चन कैट में बने, दैट विल बी फ्रॉम 3 इक्वेशन. Yes, you can apply for 2 also. You can apply for 2 also. अगर a1 जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने a1 x स्क्वायर, तुम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0. अगर ये दोनों इक्वेशन में एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट है, इफ दिस इक्वेशन विल कंटेन एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? इसमें एक रिलेशन भी होता है जब एग्जैक्टली यू कैन सॉल्व विथ दिस ऑल्सो कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेट एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दो. दैट और डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्या होता है? a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1 दैट इज इक्वल टू a1 c2
minus a2c1 whole square. This is the direct relation when there is exactly one common root between those two equations. अगर exactly two common root होंगे, let करो, this is also important, exactly two common. If a1x square plus b1x is equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 equal to 0, these two equations have exactly two common, मतलब दोनों ही इसके common root है. Then this ratio of coefficient, that means a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2. ये रेशियो कैसा होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल. जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन बोथ इक्वेशन हैव टू कॉमन रूट्स. दोनों इसके कॉमन रूट है. सो यू विल राइट 2 by 4 इज इक्वल टू 3 by 6 इज इक्वल टू 5 by a. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. तुम्हें a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. अगर एग्जैक्टली वन कॉमन रूट दिया और a की वैल्यू पूछी है, जैसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0. These two equations, and you want to find the value of a when there is exactly one common root. You can apply this formula directly and very easy to remember this formula because this is in form of ab, bc, ca. Or you can multiply this equation by 2. 2 से multiply कर सकते हो. You will get 4x square plus 6x plus 10 equal to 0. 4x square plus 6x plus a equal to 0. You can subtract this. Sorry, 4x square plus, यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा 4x है, ठीक है, दिस इज 4x. 8x प्लस 10 इक्वल टू 0, यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस. सो 2x प्लस 10 माइनस a इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू a माइनस 10 by 2. That is the value of x. This is common root. Now, how to find value of a? Common root will satisfy the equation. You can put x value here and you can find value of a. तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी. Otherwise, you can directly apply this approach. This is a lengthy one. तो थोड़ा सा इसके आने के चांसेस कम रहते हैं. 2 कॉमन रूट के क्वेश्चंस बन सकते हैं और 3 में से अगर कोई नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, दे कैन आस्क दिस. तो दीज 2 आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. नंबर ऑफ 2 कॉमन, नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं कैट में, तो चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे में आ जाए. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, लॉग वाले क्वेश्चन में ऑलवेज चेक करना पड़ेगा तुम्हें डोमेन. जैसे अगर मैं तुम्हें बस दिखा दूं, चलो लॉग वाला कोई, जैसे लेट करो ये लिखा हुआ है कि log x माइनस 2 इज इक्वल टू log 2x माइनस 4. जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log x माइनस 2 इज इक्वल टू log 2x माइनस 4 एंड दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ values of x which is satisfying the equation, number of values of x. So you will just cancel out log and you will write x minus 2 is equal to 2x minus 4. You will get x is equal to 2. But क्या x is equal to 2 equation को satisfy कर रहा है? No, it's not satisfying the domain part. It's not satisfying the domain part, so it is not a valid solution. So number of possible values of x which is satisfying this equation, that is 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो जो लॉग के लिए डोमेन होती है, अगर लॉग ए बी कब डिफाइन होता है? लॉग ए बी व्हेन बी इज ग्रेटर देन 0, a is greater than 0 and a should not be equal to 1, then only log will be defined, otherwise log will not get defined. log तभी डिफाइंड होगा जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. Why base should not be equal to 1? Because we know that log ab is nothing but log b by log a. When you will put a is equal to 1, you will get denominator as 0, which is not valid. Denominator as 0, which is not valid. So log ab will be defined when a should not be equal to 0. ठीक है, जितने भी मुझे अलजेब्रा में डिस्कस करने थे, आई डिस्कस दैट पार्ट. इन केस आई विल गेट टाइम फ्रॉम अवर क्लासेस, जो मेरे क्लास में रिवीजन कराना है, तो आई विल अपडेट दैट इन ग्रुप एंड वी विल अगेन रिवाइज सम पर्टिकुलर टॉपिक्स. ठीक है, और जो एस्केलेटर का पूछ रहे हैं वो ग्रुप पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं. वीडियोस का एक कॉलम है ग्रुप पे, वहां पे हम लोगों ने एस्केलेटर का अपडेट किया हुआ है. मैंने एस्केलेटर है, फिर मिक्सचर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैम. ठीक है, एस्केलेटर भी अपडेटेड है, मिक्सचर के. इन केस आई विल गेट टाइम, आई विल डिस्कस मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू थिंग्स. थैंक्स एंड हैप्पी.